فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کی سرگوبی جاری، خفیہ اطلاعات پر سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، اہم کمانڈر سمیت 30 دہشت گرد جہنم واصل، 8 زخمی، لکی مروت میں 18، کرک میں 8 خارجی مارے گئے، خیبر کے علاقے باغ میں سرغنہ سمیت 4 دہشت گرد جہنم واصل اور 2 زخمی۔ کامیاب کارروائیوں پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ سب کی مشترکہ جنگ ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ امریکی کانگریس اراکین کے ساتھ ملاقاتیں مفید رہیں، مخالفین سیاسی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر نہ لگائیں۔ چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے بلا سود قرض کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ چاہتے ہیں پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے؟ اپنی چھت اپنا گھر میں سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے اہداف کے حصول پر زور۔ ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کسٹمز میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ خدمت کی بہتری کے ساتھ استعداد کار میں اضافے پر بھی توجہ مرکوز ہے۔ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چیئرمین ایف پی آر راشد محمود لنگڑیال کا کراچی میں کسٹم ڈے کی تقریب سے خطاب۔ حکومت کی اقتصادی پالیسیز کے ثمرات، معاشی میدان سے مثبت خبریں آنے کا سلسلہ جاری۔ پالیسی ریٹ میں مسلسل کمی، 22% سے گر کر 13% کی سطح پر آ چکا۔ آئندہ ہفتے پالیسی ریٹ میں مزید کمی کا امکان۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح گزشتہ 10 سال کی کم ترین سطح پر۔ ٹیکس محصولات میں اضافہ، بینک سے حاصل کردہ حکومتی قرضوں کے حجم میں کمی۔ اسٹیٹ بینک سے لیے قرض بھی 9 خرب 98 ارب روپے کم ہو گئے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے قابل تجدید توانائی اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ رواں مالی سال پہلی ششماہی میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 20% اضافے کے ساتھ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔ بجلی کے شعبے میں 48 کروڑ 84 لاکھ ڈالر، مالیاتی شعبے میں 35 کروڑ 30 لاکھ ڈالر، تیل اور گیس کے شعبے میں 16 کروڑ 67 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری۔ چین 53 کروڑ 55 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ سب سے بڑا شراکت دار۔ جموں کشمیر کے عوام آج بھارتی یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال، آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیوں کا اہتمام۔ قابض انتظامیہ کی جانب سے وادی میں کڑی پابندیاں عائد، فورسز کی بھاری نفری تعینات، راہگیروں کی جامع تلاشی۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ شرکاء کے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے حق خود ارادت کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ۔ شمالی غزہ میں جنگ بندی کے بعد گھروں کو واپس آنے والے افراد پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فورسز کا آپریشن جاری، کم سن بچی سمیت 2 افراد جاں بحق۔ حماس کا اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ کرنے کا الزام۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، 4 خواتین اسرائیلی فوجی اور 200 فلسطینی قیدی رہا۔ امریکی صدر کا عالمی ادارہ صحت میں دوبارہ شمولیت پر غور کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب سے امریکہ میں سرمایہ کاری 600 ارب ڈالر سے بڑھانے کا مطالبہ۔ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب یا برطانیہ کا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ کا کل سے اسلام آباد میں آغاز۔ 13 سے زیادہ ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوان قائدین اور وزراء شرکت کریں گے۔
کانفرنس میں عالمی چیلنجز، ماحولیاتی مسائل، ڈیجیٹل تبدیلی اور سماجی اور اقتصادی شمولیت کے لیے جدت پسندانہ حل پر غور کیا جائے گا۔ جوائنٹ ملٹری ٹریننگ 154ویں لانگ کورس کا سلیوٹنگ ٹیسٹ پی ایم اے کاکول میں انعقاد۔ 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 17ویں انٹیگریٹڈ کورس، 25ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس کی شرکت۔ 485 پاک آرمی، 111 پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے 42 کیڈٹس شامل۔ کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مشترکہ تربیتی ماڈیولز اور مشقوں میں حصہ لیں گے۔ فرانس کے شہر پیرس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بچوں، نوجوانوں اور مختلف مکاتب فکر کے افراد کی شرکت۔ سول نافرمانی نامنظور، ترسیلات زر بڑھاؤ اور ملک بچاؤ کے فلک شگاف نعرے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے جس کو کسی صورت کراس نہیں کرنے دیں گے، شرکاء۔ ملتان ٹیسٹ کا دوسرا روز، ویسٹ انڈیز کی دوسرے اننگز میں بیٹنگ جاری۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز نے 163 رنز بنائے تھے، پاکستان نے 154 رنز بنائے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ کراچی میں 10ویں اسپیشل اولمپکس پاکستان میراتھن کا آغاز۔ میراتھن کا افتتاح گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کیا۔ 4000 سے زیادہ ریسرز حصہ لے رہے ہیں۔ ہاف میراتھن میں نتاشا اور قاسم کی پہلی پوزیشن۔ ہاف میراتھن کے علاوہ 1 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کی ریسز بھی ایونٹ میں شامل۔ ایونٹ کا مقصد اسپیشل ایتھلیٹ سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ اور اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا، ریال میڈرڈ کی ریال ویلاڈولڈ کو 3 گول سے شکست۔ کیلیان ایمبیپے کی ہیٹ ٹرک۔ پوائنٹس ٹیبل پر ریال میڈرڈ کی ٹیم 49 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا سمی اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے، سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ کارروائیوں میں 30 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق خارجیوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے ضلع لکی مروت میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران 18 خارجی جہنم واصل ہوئے جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ضلع کرک میں فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ہلاک کیا۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خوارج کے سرگرہ عزیز الرحمان عرف قاری اسماعیل اور مخلص سمیت 4 خوارج مارے گئے جبکہ 2 خوارج زخمی ہوئے۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ مارے جانے والے شدت پسند سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لکی مروت، کرک اور خیبر اضلاع میں خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 30 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سمیت پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے افریت کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کے خاتمے اور ملک کے دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत सा नुकसान उठाया। ये सिर्फ हमारी जंग नहीं, इस नासूर के खात्मे के लिए सबको अपना हिस्सा डालना है। ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमरीकी हुक्काम के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुखालफीन सियासी मफाद के लिए मुल्की मफाद को दाव पर न लगाएं। आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया। और दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं, ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। वो जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा, उसका बंदोबस्त पूरा होगा इंशाल्लाह। वज़ीर दाखिला ने दौरा अमेरिका के दौरान चीन मुखालिफ किसी तकरीब में शिरकत की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया, ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, मैं किसी किस्म के एंटी चाइना स्टेट के फंक्शन में ना गया, ना मैंने अटेंड किया, ना किसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी समेट रहा है। सूबे में अब तक 9,000 से जायद अफराद को 8 अरब रुपए से जायद बिला सूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के प्रोटोकॉल पोर्टल पर 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें कागजात समेत जमा कराई गई हैं। वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा, जहां सिफारिश पर रही मेरिट पर कर्जे मिलेंगे। खबर देंगे आपको पाक बहरिया की नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयारियां जारी हैं। अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। अमन 2025 की सबसे खास बात नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान का इंटरनेशनल अमन डायलॉग का होना है, जिसमें सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन डायलॉग में दुनिया भर से कमोबेश 120 वफूद शिरकत करेंगे, जबकि अमन मश्क में 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। अमन मश्क का मकसद इलाकाई अमन और ताउन को फ़रोग़ देना है। ये हार्बर और समंदर के मरहलों पर मुश्तमिल होती है। अमन 2025 मश्क की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक्किद की जाएगी। इस दौरान पाक मरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नेवी काउंटर टेररिज्म के हवाले से महारत का मुजाहरा भी करेंगे। समंदर में मैरी टाइम जराइम के खिलाफ मुश्तरक ऑपरेशन की मशक़ें भी की जाएंगी। अमन मश्क का इख्तिताम 11 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ होगा, जिसमें आला तरीन गैर मुल्की और मुल्की शख्सियात शिरकत करेंगी। कि वो जंगी जुराइम के इर्तिकाब का मुकदमा भारतीय रियासत पर चलाए। भारत ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर तामीर किया। गौ माता के नाम पे ना सिर्फ कश्मीरी मुसलमान नहीं, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को भी भेड़ बकरियों की तरह ज़बह किया। गोवा में ईसाइयों की इबादत गाहों को उन समेत जिंदा जला दिया। जो पिसे हुए और कमजोर तबकात हैं, जिनमें दलित सरफहरिस्त हैं, उनको सड़कों पर ज़बह कर दिया गया। मोदी रजीम का ये इंतहा पसंदी का नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते इस रजीम को शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया के इंसानी हकूक के अलमबरदार, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अवाम
इस रिपब्लिक डे को मुस्तरद करते हुए 7 दहाइयों से इसे यौम स्याह के तौर पर मनाते चले आ रहे हैं। और यहां इस्लामाबाद में खड़ा होके बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जम्मू में नरेंद्र मोदी तुम्हारा वजीर दिफा ये कहता है कि पाकिस्तान से मुदाखलत हो रही है, जिसकी मैं पुरजोर अल्फाज में तरदीद करता हूं। पाकिस्तान का और कश्मीरियों का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मबनी है। ये रिश्ता तुम उल्टे लटक जाओ खत्म नहीं होगा। हमें रियासत पाकिस्तान के अवाम से सियासी, अखलाकी, सफारती हमायत चाहिए जो हमें मुसलसल मिल रही है। तुम जिस तरफ इशारा करते हो वो एक इंडिजिनस तहरीक का नतीजा है, और इस तहरीक को इंशाल्लाह अब आजाद कश्मीर के गयूर अवाम अपने खून से इंशाल्लाह तरोताजा करेंगे। जब ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हो तो अपने गिरबानों में झांको, शर्म करो। तुम भारत से उठते हो, सिखों के रहनुमा तुम कनाडा में कत्ल करते हो। तुम भारत से अपनी एजेंसियों के जरिए अमेरिका में जाके दहशतगर्दी करते हो। अपने जंगी जराइम पर, अपनी रियासत दहशतगर्दी पर पर्दा डालने के लिए तुम पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाते हो। अब दुनिया तुम्हारे इस मजमूम प्रोपेगेंडे का जो असल चेहरा है वो देख चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत का ये खाकसार, ये सियासी कारकुन जिसकी असेंबली में आजाद कश्मीर की भी नुमाइंदगी है और महाजरीन जम्मू कश्मीर की भी नुमाइंदगी है, अल्लाह के फजलो करम से दोनों तरफ की नुमाइंदगी रखने वाला ये वजीर आजम तुम्हें ये बताना चाहता है कि जिस जिहादी कल्चर का मैंने बात की, अल्लाह के फजलो करम से आने वाले दिनों में हम आजाद कश्मीर के अंदर अपने हक़ दिफा को मजबूत करने के लिए एक मजबूत मंसूबाबंदी से आगे बढ़ेंगे। तुम्हें जितना शोर मचाना है, आज तुम्हारा एक वजीर आजम आजाद कश्मीर को याद करके रो रहा है, कल तुम समेत नरेंद्र मोदी तुम्हारी पूरी कबीना पूरी दुनिया में चीखती फिरेगी। इंशाल्लाह हम आगे बढ़कर अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की जदोजहद में अपना हिस्सा भरपूर तरीके से डालेंगे। मैं यहां बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके दौरे मेयार अब मजीद नहीं चल पाएंगे। मुस्लिम उम्मा के लिए मेयार और, ईस्ट तैमूर के लिए मेयार और, रियासती दहशतगर्दी जब इसराइल फलस्तीन में करे तो मेयार और, जब वो जंग इराक में दाखिल हो तो मेयार और। नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन। अब दुनिया ये जान चुकी है कि आजादी की जंगें अपने खून से कौमों को खुद लड़ना पड़ती हैं। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी भी तब कायम होती है, तब बैनुल-अक़वामी दुनिया को आपका मुकदमा याद आता है जब दुश्मन को तकलीफ इस कदर पहुंचे कि वो वावेला करता हुआ बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने पहुंचे। हमें ये बात याद रखनी है कि महज अखलाकी, सियासी, सफारती जदोजहद से ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए हमें एक कदम आगे जाना है। अपने असलाफ की, अपने शोहदा की जारी करदा तहरीक को फिर अपने लहू का नजराना देना है। इसके बगैर ये जमूद नहीं टूट पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब कश्मीरी कौम इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है। आज आजाद जम्मू कश्मीर की पूरी क़यादत, हुर्रियत क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह इस अमर पे इत्तफाक कर चुकी है कि हमें ये जमूद तोड़ना है और हमें अपना मुकदमा अपने जोरे बाजू पर लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जब मुसलमान इरादा कर लेता है, वो इरादा खालिस्तन अल्लाह पाक की रजा के लिए और मखलूक की भलाई के लिए करता है, तो फिर मदद आसमानों से उतरती है। हमें कतन माजरत खाना रवैया नहीं अपनाना। अल्लाह के फजलो करम से
अपने हक के लिए अपनी हरबी कुव्वत को बढ़ाना, ये हर स्टेट सब्जेक्ट होल्डर पर फर्ज है। हम रियासत पाकिस्तान से महज अखलाकी सियासी सफारती हिमायत का मुतालबा करते हैं। इससे आगे जितनी मनाजिल, जितने मरहले हैं, अल्लाह के फजलो करम से आजाद कश्मीर की गयूर 45 लाख अवाम इसके लिए पूरी तरह पूरी कुव्वत से तैयार है और आने वाले दिन ये साबित करेंगे। नरेंद्र मोदी, याद रखना, अब वक्त कश्मीरियों का है, तुम्हें ये आजादी देनी पड़ेगी, तुम्हें ये हक खुद इरादियत लुटाना पड़ेगा और अल्लाह के फजलो करम से जुज की बुनियाद पर नहीं, हम कुल की बुनियाद पर तहरीक आजादी कश्मीर को तहरीक तकमील पाकिस्तान की कामयाब जदोजहद में तब्दील करेंगे। तहरीक आजादी कश्मीर जिंदाबाद, रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद। APHC आज़ाद कश्मीर चैप्टर के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इससे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान अज़ली रिश्ता है। भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में अक़लियतों पर जिंदगी का घेरा तंग है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अब ये दोहरा मयार तर्क करना होगा। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। 26 जनवरी भारतीय जमहूरिया कश्मीरियों का यौम स्या। APHC आज़ाद कश्मीर चैप्टर के ज़ेर तमाम भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एहतजाजी रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इससे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान अज़ली रिश्ता है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आलमी बरादरी को अब दोहरा मयार तर्क करना होगा। नाज़रीन, इस वक्त गुलाम मोहम्मद सफ़ी हुर्रियत रहनुमा इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज के इस यौम सियाह की तकरीब में मकबूजा जम्मू व कश्मीर, आज़ाद जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तीनों इकाइयाँ मौजूद हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुकूमत, रियासत जम्मू व कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी। इससे पहले आज़ाद खित्ते की सियासी जमातों के ज़ोमा ने इजहार ख्याल किया और ये बात बता दी कि जम्मू व कश्मीर पर हिंदुस्तान का गासिबाना तसल्लुत है और इस गासिबाना तसल्लुत के खात्मे के लिए जम्मू व कश्मीर के अवाम अपनी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक न जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद हो जाए। आज यहाँ पे हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने एक आईन मंजूर किया, एक आईन पाकिस्तान ने मंजूर किया। हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू व कश्मीर को अपना अटूट अंग करार दिया, जबकि पाकिस्तान के आईन ने आर्टिकल 257 के जरिए ये बता दिया, when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. इस बुनियाद पे इल्हाक के बाद भी पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता रखना चाहते हैं, ये फैसला करने का इख्तियार भी कश्मीरियों को हासिल है।
جاوید بٹ صاحب کی قیادت میں لوگ آئے ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, اہلاً و سہلاً. آپ بات سنیں, کنوینر صاحب بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم فرق کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. پاکستان ہمارا محسن ہے, ہمارا دوست ہے, جبکہ ہندوستان دشمن ہے, غاصب ہے, ظالم ہے, قاتل ہے. اور آج جب ہم ہندوستان کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں اکائیاں ریاست کی, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, گلگت بلتستان, اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا ہے. بہت شکریہ. 26 جنوری بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ. آل پارٹی صورت کانفرنس کی احتجاجی ریلی. حریت رہنما غلام محمد صفی اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا محسن ہے, مسلسل حمایت پر شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات سے کشمیریوں کے حقوق سلب کر رکھے ہیں. پاکستان ہمارا محسن ہے, مسلسل حمایت پر شکر گزار ہیں. اس سے قبل آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق بھی اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں چودھری انوار الحق نے کہا کہ دنیا کو دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا, کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے ہوں گے. دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے. چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کسٹمز میں جدید ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لا رہے ہیں. کراچی میں کسٹم ڈے کی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. راشد محمود لنگڑیال کا کہنا تھا کہ خدمات کی بہتری کے ساتھ استعداد کار میں اضافے پر بھی توجہ ہے. ناظرین, حکومت کے بروقت مؤثر اقدامات سے معاشی میدان سے مثبت خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے. مہنگائی میں اضافے کی شرح 78 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے نتیجے میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بھی کمی آئی ہے. پالیسی ریٹ 13% پر آنے کے باعث صنعتی اور کاروباری شعبے کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے ساتھ بینکوں سے سستے قرضوں کا حصول ممکن ہو سکا ہے. بینکوں نے 6 ماہ میں نجی شعبے کو 1398 ارب روپے قرض دیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ اپنی کارکردگی اور منافع کے حوالے سے نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں بہترین سٹاک مارکیٹ کے طور پر ابھر رہی ہے. موجودہ حکومت نے اندرونی قرضوں کے بڑھتے ہوئے حجم میں کمی کی ہے. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے لیے گئے قرضوں میں 998 ارب روپے کی کمی لائی گئی ہے, جبکہ دیگر بینکوں سے بھی 719 ارب روپے قرض کم لیا ہے. ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں ٹیکس محصولات میں اضافہ اور اسٹیٹ بینک سے ملنے والا 2500 ارب روپے کا منافع ہے. بقیہ خبریں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفاس اور کین, جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کے اجلاس میں وزارت پیٹرولیم کی جانب سے صنعتی شعبے اور گھریلو گیس ٹیرف میں اضافے کی تجویز پر غور کیا گیا. ECC نے تفصیلی غور کے بعد کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس ٹیرف کو 3000 روپے فی MMBTU سے بڑھا کر 3500 روپے فی MMBTU کرنے کی منظوری دے دی. تاہم گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان پر اضافی بوجھ نہ پڑے.
SIFC के जरिए काबिल तजदीद तवानाई और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज में सरमाकारी पायदार तरक्की की जानिब अहम कदम है। गुज़िश्ता माली साल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 25% इजाफा हुआ और साल का इख्तिताम $2.5 अरब पर हुआ। रवा माली साल के पहले 6 माह में गैर मुल्की बराह रास्त सरमाकारी 20% बढ़कर $1 अरब 30 करोड़ तक जा पहुंची। शोबा तवानाई में गुज़िश्ता 6 माह में $488 मिलियन की सरमाकारी हासिल की गई। मालियाती कारोबार के शोबे में $353 मिलियन, जबकि तेल और गैस के शोबे में $166 मिलियन की सरमाकारी हुई। चीन $535 मिलियन की सरमाकारी के साथ सबसे बड़ा शिराकतदार रहा। हांगकांग की सरमाकारी 2025 के पहले निस्फ में 14% बढ़कर $134.3 मिलियन तक पहुंच गई। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान गैर मुल्की सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मंजिल है। आगाह करेंगे आपको आज कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और भारतीय जबर के खिलाफ प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। उन्होंने काबिज भारतीय फौज के हाथों बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि नाम नहाद जमहूरियत का लंबरदार होने के दावेदार भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। खित्ते में पायदार अमन का ख्वाब मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। शुरका ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने के मौके पर आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। यौम स्याह और हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दारुल-हुकूमतों में आज भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे और रैलियाँ निकाली जाएंगी ताकि आलमी बिरादरी को यह बावर कराया जा सके कि भारत जम्मू कश्मीर पर फौजी ताकत के बल पर काबिज है और वो मकबूजा इलाके में अपने यौम जमहूरिया की तकरीबात के इनेकाद का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं रखता। भारत ने अपने यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा इलाके में पाबंदियों का सिलसिला तेज कर दिया है। इलाका मुकम्मल तौर पर एक फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है। अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जहां भारतीय फोर्सेस के एहलकार गाड़ियों, मुसाफिरों, राहगीरों की मुकम्मल तलाशी लेते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के MA स्टेडियम के अतराफ में बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जहां भारतीय यौम जमहूरिया की नाम नहाद तकरीबात होंगी। सख्त पाबंदियों की वजह से अवाम मजीद मसाइब और मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुस्तरद आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में जम्मू कश्मीर में भारत की फौजी मौजूदगी की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी, गैर आइनी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। भारतीय पुलिस ने नई दिल्ली के मुसल्लत करता लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर जिला किश्तवाड़ में मजीद 11 अफराद की जायदादें जब्त कर ली हैं। अगस्त 2019 में मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से मोदी हुकूमत ने सैकड़ों मकामी लोगों की जायदादें जब्त कर ली हैं। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 154वीं लॉन्ग कोर्स का सल्यूटिंग टेस्ट का इनेकाद हुआ। तकरीब में 154वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 17वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 25वें लेडी कैडेट्स कोर्स के कैडेट्स ने शिरकत की। पहले मुश्तरका फौजी तरबियत में 485 पाक आर्मी, 111 पाक बहरिया और फजाइया के 42 कैडेट्स शामिल थे। कैडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुश्तरका तरबियती मॉड्यूल्स और मशकों में हिस्सा लेंगे। तकरीब में कमांडान PMA ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नए भर्ती होने वाले कैडेट्स से खिताब किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बहरिया और फजाइया के कैडेट्स की शमूलियत से क़यादत, अस्करी हिकमत अमली और मुश्तरका ऑपरेशन के हवाले से एक जामे कसीर खदमाती नुक्ता नज़र को फ़रोग़ मिलेगा और एक अहम संग-ए-मील साबित होगा। शिमाली गजा में अपने घरों को लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेज की फायरिंग से एक नौजवान शहीद हो गया है। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इजरायली फोर्सेज के ऑपरेशन में मजीद 2 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक कमसिन बच्ची भी शामिल है। हमास ने इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे पर अमल न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अल खलील में घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान सेहूनी अफवाज की फायरिंग से एक नौजवान जख्मी हो गया। इजरायली फौज ने छापों के दौरान कई फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि गजा जंग बंदी माहदे पर मुसलसल अमल दरामद ज़रूरी है। उन्होंने फ़रीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में किरदार अदा करें। इसराइल ने हमास और इसराइल के दरमियान तबादले के माहदे के तहत 4 इसराइली ख़वातीन के बदले अपनी जेलों में कैद 200 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले अफराद में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 120 कैदी भी शामिल हैं। रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदी मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला पहुँच गए हैं। इससे कबल हमास ने गजा में 4 इसराइली ख़वातीन को रेड क्रॉस के हवाले किया था, जिसके बाद फौजी इसराइली ख़वातीन तेल अवीव पहुँचा दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत में दोबारा शमूलियत पर गौर करने का ऐलान कर दिया है। लॉस वेगस में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब से अमेरिका में सरमायाकारी 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर $1 खरब करने का भी कहेंगे। एयरफोर्स वन पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरा गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब या बरतानिया का हो सकता है, ताहम गालिब इम्कान है कि उनका पहला बैन अवी दौरा सऊदी अरब का हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता दौरा सऊदी अरब का सफ़र इसलिए किया था कि क्योंकि अरब ममलिकत ने अरबों डॉलर्स मालियत का अमरीकी तिजारती सामान ख़रीदने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अगर ये पेशकश दुरुस्त हुई तो मैं दोबारा बात करूँगा। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तूफान एवियन से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। शिमाली बहरा उक़यानूस में शदीद दर्जे का एवियन नामी तूफान मौजूद है, जिसने बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। तूफान के बायस 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ और 10 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम हो गए। शिमाली कोरिया ने स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया है। हुकाम ने मिसाइल तजर्बे की तस्दीक की है। हुकाम के मुताबिक पानी से ज़मीन तक की सतह तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल ने 1500 किलोमीटर तक कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजर्बे की निगरानी की। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि शिमाली कोरिया ने मगरबी साहिल के पानियों की तरफ अंदरून मुल्क से मुतअद्दिद क्रूज मिसाइल दागे। और नाज़रीन, खबर दें आपको, दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट का कल से इस्लामाबाद में आगाज हो रहा है। वज़ारत उमूर नौजवानान के ज़ेर इंतज़ाम इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से माहिरीन शिरकत करेंगे। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। यूथ समिट दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस के तहत इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। 27 से 30 जनवरी के दौरान मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस के मौके पर कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट भी बाकायदा तौर पर काम का आगाज करेगा। कॉन्फ्रेंस में 13 से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कायदीन और वुज़रा शिरकत कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आलमी शख्सियात और नौजवानों की शिरकत कॉन्फ्रेंस की अहमियत को जाहिर करती है। कॉमनवेल्थ यूथ एशिया समिट इस वजह से भी इंतहाई अहम है कि इसमें खित्ते भर से नौजवान रहनुमा, पॉलिसी साज और दीगर शराकतदार मुश्तरका फोरम पर आलमी चैलेंजेस, माहौलियाती मसाइल, डिजिटल तब्दीली और समाजी और इक्तिसादी शमूलियत के लिए जिद्दत पसंदाना हल पर गौर करेंगे। यूथ समिट का पाकिस्तान में इनकाद पाकिस्तान के नौजवानों के लिए तरक्की के अज़म का इजहार है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरपर्सन ईमान पाकिस्तान तहरीक फराजीम शाह कहती हैं कि पाकिस्तान हम सब का घर है, पाकिस्तान से ही हमारा वजूद है। सियासी रहनुमा इख्तलाफात से बालातर होकर मुल्क का सोचें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फराजीम शाह ने कहा कि हमें दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। मुट्ठी भर अनासिर की तरफ से मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल मसम्मत है। इस तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल को वर्गलाया जा रहा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होने देंगे। सबको हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि अपने मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि हम कहीं किसी और दुनिया में किसी और मुल्क में जब जाते हैं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में पाक फौज की जानिब से मेडिकल एंड डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में अवाम इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया, फ्री अद्वियात फराहम की। कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेंटल सर्जन्स और दीगर माहिरीन सेहत मौजूद थे। इलाका मकीनों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर पाक फौज की इस काविश का खैर मकदम किया और मुस्तकबिल में भी इस तरह के इक़दामात का सिलसिला जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। हवलदार साहिद खान शहीद 15 अक्टूबर 2024 को
जिला शिमाली वजीरिस्तान के गड़ियुम सेक्टर में दिफाए वतन में शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। हवालदार जाहिर खान शहीद का ताल्लुक जिला जहलम से है। हवालदार जाहिर खान शहीद ने सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। हवालदार जाहिर खान शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा है कि भाई ने मुल्क के लिए दुश्मन को नेस्तो नाबूद करते हुए शहादत का रुतबा पाया। फ्रांस में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली का एहतमाम यूरोपीय यूनियन, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और पाकिस्तान कम्युनिटी फ्रांस के ज़रिए एहतमाम पेरिस में किया गया था। कौमी परचम थामे हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चों, नौजवान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। सिविल नाफरमानी नामंजूर, तरसीलात ज़र बढ़ाओ और मुल्क बचाओ के फलक शिकाफ नारों से पेरिस की फ़ज़ा गूंज उठी। रैली के शुरका ने पैगाम दिया कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है जिसको किसी सूरत क्रॉस नहीं करने देंगे। पाकिस्तान और पाक फौज के दुश्मनों ने हमेशा मनफी प्रोपोगंडे का सहारा लिया। बादशाह और अवाम उनके मकरू अज़ाइम पहचान चुके हैं। पेरिस की अजीम उश्शान रैली दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं। और चीन के नए साल की मुनासबत से इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग ज़िदांग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने गुज़िश्ता साल दोस्ती के 75 साल मनाए। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि इस साल भी दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। इस मौके पर चीनी सफारत खाने के अमले और उनके बच्चों ने अपनी सकाफ़त का भरपूर तौर पर उजागर किया। अमले ने चीनी रक्स के साथ साथ मार्शल आर्ट्स का भी भरपूर मुज़ाहरा किया। तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात ने शिरकत की और चीनी खानों के स्टॉल भी देखे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तंजीमी ढांचा तश्कील देने का फैसला किया है। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने सदर और जनरल सेक्रेटरी के नाम मंजूरी दे दी है। अब्दुल अलीम खान से पार्टी के सूबाई सदर और अहम रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। वफूद से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क और कौम से बढ़कर कोई तरजीह नहीं हो सकती। सियासत हुकूमत के बजाय रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करना होगी। अलीम खान से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब राना नज़ीर, सदर लाहौर मलिक ज़मान नसीब और जनरल सेक्रेटरी राना जावेद इकबाल ने मुलाकात की। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान को मुख्तलिफ अजला में होने वाली तंजीम साजी और सियासी उमूर पर ब्रीफ किया गया। न्यूयॉर्क में 2 रोज़ा ट्रैवल एंड एडवेंचर शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पवेलियन में 13 पाकिस्तानी कंपनियों, सूबाई सयाहती महकमे और PTDC ने स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तानी पवेलियन को बेहतरीन पार्टनर पवेलियन के अवार्ड से नवाजा गया। तफसीर बताएंगी कंसा नकवी। सयाहत के फरोग के लिए न्यूयॉर्क में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में वजीर आला गिलगित बिल्तिस्तान गुलबर खान और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पाकिस्तानी कौंसल खाने के ताउन से कायम किए गए पवेलियन में 13 पाकिस्तानी कंपनियों समेत सूबाई सयाहती महकमों और PTDC ने स्टॉल्स लगाए। कौमी सयाहती ब्रांड सलाम पाकिस्तान के बैनर तले कायम होने वाले पाकिस्तानी पवेलियन में मुल्क के दिलकश सयाहती मुकामात समेत भरपूर सकाफती विरसे और मुतनव्वे सयाहती खिदमात को नुमाया किया गया। शो के पहले रोज पाकिस्तानी स्टॉल्स पर मौजूद खूबसूरत अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज बनी रही। शुरा ने कोपैमाई, एडवेंचर टूरिज्म और मजहबी सयाहत में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उनके वफ्द के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत सहूलियात की कमी के बावजूद सयाहत की तरक्की के लिए कोशां है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने पाकिस्तान खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के शोबे में मौजूद वसी मौक़े को उजागर किया। सफ़ीर ने न्यूयॉर्क ट्रैवल शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। आगाह करेंगे आपको मलका कोसार मरी और कुटली सतियां के मुतादिद इलाकों के जंगलात में आतिश ज़दगी से सैकड़ों छोटे और बड़े दरख्त बुरी तरह से मुतासर हो गए हैं। गुज़िश्ता रात एक्सप्रेस रोड से मुल्हिका इलाके में आग लग गई, जबकि बाज़ इलाकों में जंगलात से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के घर भी आग की जद में आ गए। फॉरेस्ट और रेस्क्यू 112 का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। दुश्वार गुजार रास्ते होने की वजह से अमला शदीद मुश्किलात का सामना है।
कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 39 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दुल्हन को 2 लाख से ज्यादा का सामान और 1 लाख नकदी सलामी दी गई। मजीद जानेंगे चौधरी वसीम खुशी की इस रिपोर्ट में। कसूर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धीरानी प्रोग्राम में सूबाई वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान, सेक्रेटरी बैतुल माल पंजाब जावेद अख्तर महमूद, डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर औरंगजेब हैदर और MPA हाजी नईम सफदर अंसारी ने शिरकत की। सूबाई वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा कि ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। अगले माली साल में जो है इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो ज़्यादा बजट इंशाल्लाह वो इसके लिए दे रही हैं और कोशिश होगी कि 3000 से ज़्यादा जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको इस तरह उनकी शादियां की जाए। हमारा पोर्टल है, उस पर कोई भी बच्ची या उसके पेरेंट्स उस पर दरख्वास्त कर सकते हैं। उसके बाद तहसील लेवल पर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो चेयरमैनशिप में तमाम तहसीलों में कमेटियां हैं वो उनकी वेरिफिकेशन करके हमें वापस भेजते हैं। जिला कसूर के 39 नौ बेहता जोड़ों को निजी हाल में 1 लाख नकदी सलामी और 2 लाख का सामान तकसीम किया गया। हम मरियम नवाज साहिबा का थैंक यू कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है और पंजाब को जो अब वजीर आला मिली है, पंजाब को एक ऐसे ही वजीर आला की जरूरत थी। उन्होंने पूरे जिले की माँ बन के दिखाया है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी महंगाई और इस महंगाई में कौन इस तरह करता है किसी के लिए। धीरानी प्रोग्राम में 9 बेहता जोड़ों मेहमानों को बैंड बाजे के साथ सलामी भी दी गई। चौधरी वसीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कसूर। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जिला जेहलम में भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ये मंसूबा सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए शुरू किया गया है। रिपोर्ट करेंगे नईम अख्तर भट्टी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जिला जेलम में बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से रुकन कौमी असम्बली चौधरी फारूक अल्ताफ ने वज़ीर आला के सफाई के विजन को खराज तहसीन पेश किया, जबकि रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पंजाब की तरक्की का अहम संग मेल करार दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि ये मनसूबा शहरों के साथ देहात में भी सफाई यकीनी बनाने के लिए नाफज किया गया है। तकरीब में जिले इंतजामिया और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान समेत समाजी व सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला जेलम में आप देखेंगे कि सफाई के निज़ाम में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी और उसी तरह का निज़ाम आएगा जिस तरह का लाहौर या रावलपिंडी के शहरों में होता है, जदीद मशीनरी के साथ। सुथरा पंजाब के तहत जेलम शहरों में सफाती इलाकों में सफाई मुहिम जोर शोर से जारी है, जिसे शहरी और दही हल्कों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। जो हमारा सफाई का सिस्टम था वो अब जैसे हमारा मेन शहर बाजार जिसे कहते हैं उससे बढ़कर और इसका जो अहाता है वो बढ़कर गली मोहल्लों तक आ गया। जितने तरक्याती काम है वो सारे शहरों में हो जाया करते थे, लेकिन अब चूंकि ये गांव की तरफ भी शिफ्ट हुए हैं तो उनकी ये महरूमी भी उम्मीद है दूर होगी। शहरियों के लिए 1139 टोल फ्री नंबर भी फराहम किया गया है ताकि सफाई के मुतल्लिक शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जा सके। शहरों के बाद दही इलाकों में भी सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का ये अहसन कदम है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम इस दौरान पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह -13, गोपिस -11, अस्तोर स्कर्दू -10, हुंजा -6, कलात और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।